वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने 3 देशों को हराया। उनकी तरफ से कहा गया है भारत ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की को हराया है। पाकिस्तान चीन को लाइव जानकारी दे रहा था। तुर्की के ड्रोन और पायलट पाक में मौजूद थे। इस बात का जिक्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उप सेना प्रमुख की तरफ से किया गया। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने उन ड्रोन को नष्ट कर दिया। और चीन जो कि लगातार पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था, अब इसका एक बार फिर से खुलासा उप सेना प्रमुख की तरफ से किया गया। जाहिर तौर पर आप तो देखते ही हैं कि चीन को किस तरह से भारत से हमेशा से मिर्ची लगी रहती है, और जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई, उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया उसे उसी की भाषा में, तो उस वक्त आप समझिए कि चीन कैसे उसकी मदद कर रहा था। लाइव जानकारी दी जा रही थी चीन की तरफ से पाकिस्तान को, और तुर्की का फुल सपोर्ट रहा है। आपने देखा कि किस तरह से तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया ने देखी है, और अब उसको लेकर यहां पर देखिए, आपको बताएं कि उप सेना प्रमुख की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। Another important thing during Op Sindoor was air defense and how it panned out. So it is good, bad. We could do a lot. Mr. Ashok did talk about it, that some of our indigenous systems performed well, some did not perform very well too. So it's of course a cat and mouse game, as I was mentioning outside. We need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that, and for that, more and more air defense, more and more counter rocket, artillery, drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise, because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. The next important lesson is the importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. I talked about electronic warfare, and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, as far as the other, we do not have the luxury like, we would have been seeing the way Israel, they have the Iron Dome, and
number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. So we need to again look सिंदूर को लेकर air defense. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बड़ा बयान आया है। पाकिस्तान लगातार चीन से लाइव जानकारी भी ले रहा था, उसको सब कुछ बता रहा था, और चीन भी अपने हथियारों को, क्योंकि 80%, जैसा राहुल आर सिंह साहब बता रहे थे कि 80% हथियार चीन से आए हैं पिछले लंबे समय से। तो इस बड़ी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ में ब्रिगेडियर संजीव खन्ना साहब भी मौजूद हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपके पास आऊंगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 देशों को हराया है, इसमें क्या ये एक सैन्य कार्रवाई वाला सबसे बड़ा ऑपरेशन बन गया है ऑपरेशन सिंदूर इस बयान के बाद? यकीनन ये अमिश्रित सच है, अनएलॉयड ट्रूथ है। एक एक करके मैं बताता हूं। पहले 3 देश यानी कि टर्की, चाइना और पाकिस्तान, ये तीनों को हमने ऑपरेशन सिंदूर में हराया। चाइना को कैसे हराया? चाइना ने के करीब 80% हथियार पाकिस्तान में है। उसमें उसके एयर डिफेंस सिस्टम भी थे, उसकी मिसाइल भी थी और उसके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी थे। जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9, उस HQ-9 को हमने ध्वस्त किया। चाइना के लिए पाकिस्तान एक टेस्टिंग ग्राउंड है। वो जो उसने अपनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, उसकी क्षमता केवल उन्हीं क्रूज मिसाइल्स को ध्वस्त करने की थी जिनकी स्पीड मैक 2 यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज हो। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, उसकी जो स्पीड है वो मैक 3 है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज। इसलिए वो HQ-9 फेल हो गया और ध्वस्त हो गया। जो उसने PL-15 एक मिसाइल अपनी ये कहा था कि साहब इसका तो कोई समानांतर ही नहीं है, वो उसकी PL-15 मिसाइल भी ध्वस्त हो गई और हिंदुस्तान के एक राज्य के क्षेत्र में पड़ी हुई पाई गई, जिसको लेने के लिए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत सारे देश ये कह रहे हैं कि इसका मलबा हमें दो ताकि हम इसकी काट भी पैदा कर सकें। जो उसका JF-17 एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, थोड़ी ही देर में उसके एयर फ्रेम में दरार आ गई और वो भी हमारे सामने नहीं टिक पाया। इस तरह से हमने चीन के हथियारों को नष्ट किया। ऐसे ही टर्की ने न केवल अपने ड्रोन भेजे थे, बल्कि ड्रोन ऑपरेटर्स भी भेजे थे और कुछ पायलट्स भी भेजे थे, लेकिन वो भी हमारी जो एयर डिफेंस की एक इंटीग्रेटेड दीवार थी, लेह से लेके और सरक्रीक तक हमने S-400 से लेके और आकाश तीर और इन सब ऐसी मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया था। बिल्कुल इस तरह से इंटीग्रेट किया था कि हम जिसकी आवश्यकता हो उसी एयर डिफेंस को इस्तेमाल करें। यानी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे 400 किलोमीटर पे पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट है तो S-400, और अगर कोई छोटा एरियल टारगेट है तो उसमें हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया। बिल्कुल त्यागी साहब, बिल्कुल। जी। मैं ब्रिगेडियर संजीव खन्ना जी से एक बात समझना चाहती हूँ, आप दोनों से चर्चा हम कर रहे हैं, मेरे साथ में आकांक्षा भी मौजूद है, कि जो भारत की एक रणनीति थी जो पहले थी रक्षात्मक, लेकिन अब उसमें एक बदलाव आया है, वो हो गई है आक्रामक। इसके अलावा भी हमारा जो फॉरेन जो एक रणनीति होती है, पॉलिसी होती है जो हमारी, वो भी बदली है। डिफेंस पॉलिसी जिसे कहें कि लगातार हम हथियार भी अभी खरीद रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारी विदेश नीति भी बदली है। इन तमाम चीज़ों को जोड़कर अगर देखें और इस बयान के साथ, तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाला कल भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि सच तो ये है कि टर्की साथ नहीं था, बता दिया हमने, चाइना साथ नहीं था, और यहाँ तक कि वर्बल लिहाज से, फिजिकल लिहाज से कोई और देश भी साथ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन भारत ने स्टैंड लिया है कि टेररिज्म के खिलाफ अकेले ही लड़ना पड़े, कोई साथ हो या ना हो, हम तो लड़ेंगे। तो इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं आप? अदिति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। एंड आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हम जो है मिलिट्री, जो हमारा सोचने का तरीका था वो चेंज हुआ है, और दूसरा जो है हमारी कूटनीति जो है
उसमें भी बदलाव आया है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हम आर्मी चीफ वाइस ऑफ आर्मी चीफ जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि 3 देश जो है इन 3 देशों को हराया है। मैं बोलूंगा कि 4 देश, क्योंकि इसमें मेरा ये मानना है कि अमेरिका से भी जो है जो पाकिस्तान को ओवर द इयर्स मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री जो सप्लाईज हुई हैं उसका भी उन्होंने पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है हिंदुस्तान के खिलाफ। हाँ, ये जरूर है कि सबसे ज्यादा अब डिपेंडेंसी जो है पाकिस्तान की चाइना के ऊपर हो गई है। और चाइना जो है, आपको पता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, विश्व में हमारा कद ऊंचा होता जा रहा है, वैसे ही चाइना जो है उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है और वो कोशिश ये कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमें दबाया जाए, चाहे कूटनीतिक स्तर पे या मिलिट्री स्तर पे। तो जब ये जंग छिड़ी है तो उसके बाद जो है उन्होंने यही जो है तकनीक अपनाई। तुर्की का सवाल है, वो एक एर्दोगान जो है वो इस्लामिक जो खलीफत है उसको फिर से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसमें वो उनको ये महसूस होता है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम देश है, तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है मदद की है डिप्लोमेटिकली और एज वेल एज मिलिट्री। जैसे कि कर्नल त्यागी साहब बता रहे हैं, बिल्कुल सही उन्होंने बोला है कि इसमें जो है वेपन सिस्टम्स जो है चाइना के भी इस्तेमाल हुए, टर्की के भी इस्तेमाल हुए, और मैं एक स्टेप आगे भी ये बोलूंगा कि अमेरिका के भी जो वेपन सिस्टम्स हैं वो भी इस्तेमाल हुए हैं। अब बात आती है जो आपने बोला कि हमारा जो मिलिट्री सोचने का तरीका है वो फ्रॉम डिफेंसिव पोस्चर टू एग्रेसिव पोस्चर हो गया। ये बहुत जरूरी है। अभी तक जो है हम तकरीबन 15 साल पहले जो है हमें एक सॉफ्ट स्टेट माना जाता है। आप देखिए हमारे अगेंस्ट कितने बड़े बड़े कहीं ना कहीं यस मैन वाली भूमिका से सब भारत बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एससीओ समिट में भी वो तस्वीर देखी कि भारत ने क्लियरली सिग्नेचर करने से मना कर दिया संयुक्त बयान पर, क्योंकि उसमें आतंक का जिक्र ही नहीं था। लेकिन खन्ना से इसमें एक चीज इंक्लूड करते हुए चीन की भूमिका पर हम लगातार बात कर रहे हैं, टर्की भी इसमें शामिल हो चुका है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि चीन भी एक तरह से खेल खेल रहा है पाकिस्तान को मोहरा बनाकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका भी। आप देखिए कि ऑल ऑफ अ सडन जो है अमेरिका का झुकाव काफी हद तक जो है पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है। पहले उनके आर्मी चीफ को वहां इनवाइट किया गया अमेरिका में, उसके बाद जो है उनके एयर चीफ वहां पे गए हैं। तो ये दोनों देश अब इन सब की जो वजह है वो ये है कि इनमें से कोई भी देश जो है, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, वो नहीं चाहते कि भारत जो है उभरे। और जिस स्तर पे वो उभर रहा है और पूरी दुनिया में हमारी एक साख हो गई है, हमारे प्रधानमंत्री साहब कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। साहब की बात को आगे ले जाते हुए मैं त्यागी साहब के पास जाऊंगी। त्यागी साहब, लेकिन ये जो बात कही गई है कि किस तरीके से झुकाव अमेरिका का चीन की पाकिस्तान की तरफ नजर आ रहा है और विजिबल है, ऐसी स्थिति में जो मैसेजिंग वाली जो आजकल परसेप्शन और मैसेजिंग की जो वैश्विक रणनीति है उसमें और क्या बदलाव भारत की तरफ से जरूरी है? एक तरफ हमें 24 ऐसे सबसे ज्यादा सर्वोच्च सम्मान भी मिलते हैं, वो छोटे छोटे देश हैं, लेकिन बड़े देशों के साथ क्या रणनीति हो, खास तौर पे अमेरिका जो हस्तक्षेप करने में विश्वास रखता है हर बात पे? देखिए, क्या मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका इजराइल को छोड़ सकता है? क्योंकि उसने 1948 में मिडिल ईस्ट में इजराइल को इसीलिए स्थापित किया था कि मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव बना रहे, ऑयल ईरान का कम रहे। ऐसे ही साउथ एशिया में क्या अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ सकता है? उसको मिलिट्री बेसिस की जरूरत है। वो मिलिट्री बेसिस हिंदुस्तान तो प्रोवाइड करेगा नहीं, तो वो पाकिस्तान में, क्योंकि वहां से वो आवश्यकता पड़ने पर ईरान या अफगानिस्तान के ऊपर अगर कोई एक्शन ले तो उसे मिलिट्री बेसिस चाहिए और वो पाकिस्तान उसे प्रोवाइड करेगा। लिहाजा उसका झुकाव कहे या ना कहे वो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान के पास रहेगा। हम अलबत्ता कुवैत में अमेरिका के साथ हैं, लेकिन उसमें भी हमने ये कह दिया था शुरू में ही कि कुवैत is not a military alliance. It is a alliance just to ensure कि साउथ पैसिफिक के अंदर इंटरनेशनल लॉ को माना जाए और फ्री मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल नेवी का होना चाहिए, कॉमर्शियल शिप का होना चाहिए। ये तो अमेरिका की बात रही। जहाँ तक चाइना की बात है, जो ये कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ में आयरन क्लेड फ्रेंडशिप है, बहुत पहले से रही है,
तो लेकिन चाइना को इंटरेस्ट है अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो वो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए, लेकिन सर बढ़ती ताकत के साथ साथ यहाँ पर ये तो क्लियर हो चुका है कि हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जरूर पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे, लेकिन भले ही चाइना ने पीछे से या फिर टर्की ने पीछे से दखल अंदाजी करने की कोशिश की, तो दोनों देशों को मैसेज चला गया त्यागी सर। चला तो गया मैसेज, लेकिन मैसेज तो अब जाना शुरू हुआ है। अब देखिए, मैं आपको 3 छोटी छोटी एग्जांपल देता हूं कि अमेरिका और चाइना जो जिसके जी में आए कर ले, लेकिन हमें अब किसी की अलायंस की आवश्यकता नहीं, हम खुद कैपेबल हैं। 3 एग्जांपल में सबसे पहले मैं देता हूं K6, यानी कि K6 वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रेंज 10,000 किलोमीटर है, यानी कि यूरोप तक उसकी पहुंच है, एशिया में, अफ्रीका में वो ICBM बनाई जा रही है और उसका पेलोड भी 3 टन है। तो ऐसी K6 जो अब तक हमारे पास नहीं थी, ब्रह्मोस से कहीं ज्यादा, ब्रह्मोस तो क्रूज मिसाइल है टेक्निकल लेवल पर, मगर ये स्ट्रेटेजिक लेवल पर। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ रशिया, हम उससे ज्यादा इफेक्टिव अपना कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमने उस सिस्टम के लिए भी बताया। और एक और वो है बंकर बस्टिंग, बड़ा जिक्र हो रहा है आजकल GBU-57 का, लेकिन हमने बंकर बस्टिंग बम नहीं, बंकर बस्टिंग मिसाइल, यानी कि जिसके अंदर त्यागी साहब, ये 2 तरह की लड़ाई होती है। एक हम मिलिट्री लड़ाई लड़ते हैं जो वॉर होती है, एक होता है हम डिप्लोमेसी वाली लड़ाई लड़ते हैं, जिसके लिए अब हम फ्रंट फुट पे आ चुके हैं। मैं चाहूंगी खन्ना साहब एक बात समझाइए, अगर मिडिल ईस्ट में कंधा बनाया जाता है अमेरिका द्वारा इजराइल को, साउथ एशिया में कंधा बन जाते हैं, या जिस तरह से कहा जाए पाकिस्तान को यूज किया जाता है, लेकिन जब जब चाइना की बात आती है तो भारत को यूज कर लिया जाता है। तो अमेरिका की जो ये दादागिरी है और जो कि सही नहीं है उस लिहाज से, खास तौर पे 140 करोड़ देशवासियों वाले भारत के साथ, उसकी डिप्लोमेसी भारत की अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि चाइना के लिहाज से भारत को भी अमेरिका की उतनी जरूरत है, तो कैसे देखेंगे? देखिए अदिति, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। अमेरिका जो है कहीं पे भी विश्व में लड़ाई हो, वो डायरेक्टली जंग में नहीं घुसता है। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख लीजिए, वहां पे उन्होंने यूक्रेन को मोहरा बनाया हुआ है, और मिडिल ईस्ट में देख लीजिए तो वहां इजराइल को मोहरा बनाया हुआ है। तो डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए सर भारत की अब अमेरिका के साथ? हमारी देखिए, हमने अपनी डिप्लोमेसी बहुत क्लियर कर दी है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, अभी देखिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्वाड मीटिंग के टाइम इतना बढ़िया बोला है और इतने स्ट्रॉन्ग शब्दों में बोला है, और वहां पे उन्होंने महसूस करा दिया है कि एक तो हम टेररिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो हिंदुस्तान ने एक्शन लेना वो लेगा, चाहे हमारे साथ कोई खड़ा हो या नहीं खड़ा हो। आज हमारे देश में वो क्षमता हो गई है जो पहले नहीं थी। खन्ना साहब, आपका, त्यागी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आकांक्षा भी स्टूडियो से मौजूद थी, आप मेरे साथ बने रहिए।